یہ فلم ایک امریکی جہاز کے کپتان کے بارے میں ہے جس کا نام فلپس ہے۔ اسے اس کارگو جہاز تک پہنچنے کے لیے بندرگاہ پر جانا پڑتا ہے جس کا وہ کپتان کے طور پر خیال رکھتا ہے۔ اس کارگو جہاز میں جدید ٹیکنالوجی کے آلات ہوتے ہیں۔ فلپس کی ایک بیوی اور بچے ہوتے ہیں جن سے وہ بہت محبت کرتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو الوداع کہتا ہے جو اسے بندرگاہ پر چھوڑتی ہے اور اسے بچوں کا بھی خیال رکھنے کو کہتا ہے۔ آگے ہمیں ایک جگہ دکھائی جاتی ہے جسے صومالیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں کچھ لوگوں نے ایک قبیلے کے ساتھ چھاپا مارا ہوتا ہے جو خود کو مچھیرے کہتے ہیں، لیکن دراصل یہ سمندر کے قزاقوں کا ایک گروہ ہوتا ہے جسے مجرموں کی حمایت حاصل ہوتی ہے۔ وہاں کے لوگ بے اختیار، مایوس اور غربت کی حالت میں ہوتے ہیں، اس لیے انہیں بزرگوں کی بات سننی پڑتی ہے اور سمندر پار جا کر کسی جہاز پر حملہ کرنا پڑتا ہے جس میں سامان موجود ہو، اور پیسے کما کر انہیں واپس بزرگوں کے پاس لانا پڑتا ہے۔ پھر ہمیں ایک کشتی کا کپتان میوز دکھتا ہے جس کی ایک اور قزاق اسد کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ ایک کارگو جہاز سمندر پار جانے والا ہے اور اب ان کے لیے وقت ہے کہ وہ جا کر اس پر چھاپا مارے۔ میوز کے ساتھ اسد کو بھی جانا ہوتا ہے اور مدد کے لیے کچھ لوگوں کو بھی منتخب کرنا ہوتا ہے۔ میوز اپنے ساتھ نوجوان قزاق بلال کو چن لیتا ہے۔ پھر وہ سب کشتی پر سوار ہو جاتے ہیں اور اپنے مشن کے لیے سفر شروع کرتے ہیں۔ ہتھیار بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اگلے سین میں فلپس جدید کارگو جہاز کے کنٹینر پر سوار ہوتا ہے اور پورے جہاز کا معائنہ کرتا ہے۔ وہ حفاظت اور دیگر چیزوں کو بھی یقینی بناتا ہے۔ کیونکہ وہ ایک پیشہ ور جہاز کا کپتان ہوتا ہے، وہ شین سے بھی ملتا ہے جو عملے کا سربراہ ہے اور جس کو فلپس زیادہ تر احکامات دیتا ہے۔ اس کے بعد جہاز اہم سامان اور جدید تکنیکی آلات لے کر روانہ ہوتا ہے۔ فلپس کچھ دستاویزات دیکھتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اہم سامان لے جانے والے جہازوں پر ہمیشہ زیادہ تر قزاق حملہ کر کے سامان لوٹ لیتے ہیں۔ تو وہ ایک ماہر کپتان ہونے کے ناطے سب کو سیکیورٹی اور حفاظت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی جانچ پڑتال کرنے کو کہتا ہے، کیونکہ جہاز کے عملے کے اراکین کو ہتھیار لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اگر حملہ ہوتا تو ان کا واحد کام قزاقوں سے بچنے کے لیے رفتار بڑھانا ہوتا ہے۔ فلپس جو کہ چوکسی پر ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ریڈار پر دو کشتیوں میں قزاق ان کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ مین لائن سے مدد کی درخواست کرتا ہے، لیکن وہ اسے صرف رفتار بڑھانے کے لیے کہتے ہیں۔ وہ ایک چال چلتا ہے اور ڈیوائس لائن کے ذریعے جھوٹ بولتا ہے کہ وہ جلد ہی فائر کھول دیں گے اور قزاقوں پر ہتھیاروں کا استعمال کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ایک کشتی دھوکے میں آ کر واپس چلی جاتی ہے، جبکہ دوسری کشتی جس میں میوز، کشتی اور قزاقوں کا کپتان موجود ہوتا ہے، وہ اس چال میں نہیں آتے اور اپنے دوستوں کو کہتے ہیں کہ کارگو جہاز کا پیچھا جاری رکھیں۔ رات چلتی رہتی ہے اور قزاق آپس میں بات کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ میوز کا ایک اور قزاق کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے اور وہ اسے ایک آلے کا استعمال کر کے خون بہانے پر مجبور کرتا ہے۔ دن گزرتا ہے اور فلپس کو بتایا جاتا ہے کہ کشتی اب دوبارہ ان کا پیچھا کر رہی ہے اور رفتار بڑھا رہی ہے۔ اس لیے فلپس سب کو بتاتا ہے کہ انہیں دوبارہ گم کرنے کے لیے تیار رہیں۔ وہ انہیں رفتار بڑھانے اور پانی کی انجن کے پہلو کے حصے کھولنے کو کہتا ہے تاکہ انہیں قریب نہ آنے دیا جائے۔ فلپس اور شین اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان سے پیچھا چھڑائیں، لیکن بدقسمتی سے قزاق اپنے ساتھ لائی ہوئی سیڑھی کے ذریعے کارگو جہاز پر چڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ فلپس یہ جانتے ہوئے کہ وہ انہیں دور رکھنے میں ناکام رہا ہے، تھوڑا گھبرا جاتا ہے اور پھر اندر چلا جاتا ہے۔ اپنے عملے کے اراکین کو انجن کے کمرے میں چھپنے کو کہتا ہے۔ آخر کار وہ لمحہ آتا ہے جب فلپس کا سامنا نوجوان قزاق میوز سے ہوتا ہے، جو کپتان کو بتاتا ہے کہ اگر انہیں پیسے مل جائیں تو کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ رات چلتی رہتی ہے اور قزاق آپس میں بات کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ میوز کا ایک اور قزاق کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے اور وہ اسے ایک آلے کا استعمال کرتے ہیں، جو کپتان کو بتاتا ہے کہ اگر انہیں پیسے مل جائیں تو کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ میوز جانتا ہوتا ہے کہ عملہ ضرور کہیں انجن روم میں چھپا ہوا ہے، اس لیے وہ فلپس سے کہتا ہے کہ وہ پورے جہاز کی تلاشی لینا چاہتا ہے تاکہ انہیں ڈھونڈ سکے۔ میوز اور دوسرے افراد پھر جہاز کی تلاشی لینے کے لیے نکلتے ہیں اور فلپ اسے بہکانے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میوز کہتا ہے کہ وہ انجن روم کی تلاشی لے گا چاہے وہاں کتنی ہی گرمی کیوں نہ ہو، اور فلپ نے جو بھی بہانے کیے ہوتے ہیں وہ نہیں مانتا۔ یہ منظر شدت اختیار کر لیتا ہے جب میوز کپتان کو دھمکاتا ہے کہ وہ اپنے مقصد میں سنجیدہ ہے۔ فلپ سوچتا ہے کہ شاید وہ جھوٹ بول کر اور گمراہ کر کے وقت حاصل کر سکتا ہے، لیکن میوز کی ضد اس کی تمام تدبیریں ناکام کر دیتی ہے۔
म्यूज के रवैये से जाहिर होता है कि जो कुछ भी हो जाए उसको जहाज के हर कोने की तलाशी लेकर अमले को ढूंढना होता है। जहाज के दूसरे हिस्से में मौजूद अमले का एक रुकन जहाज के लाइट सिस्टम को बंद कर देता है, जिससे कज़ाकों के लिए अमले को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। वो ये भी मंसूबा बनाते हैं कि बिलाल जो नंगे पांव होता है उसको बुरी तरह से जख्मी कर दिया जाए। इसलिए फिलिप्स उन्हें बताता है कि उन्हें वापस जाना चाहिए क्योंकि जहाज का सिस्टम खराब हो गया है। म्यूज कहता है कि उन सबको वापस ऊपर जाना चाहिए और वो वहीं रहेगा और तलाशी लेगा। ताहम जब वो मजीद नीचे जाता है तो अमले के अराकीन उसे चुपके से काबू कर लेते हैं, उसे यरगमाल बना लेते हैं और फिर उसे डिवाइस के जरिए बताते हैं कि वो अपने कप्तानों का तबादला करना चाहते हैं और उन्हें $30,000 के एवज कज़ाकों को वापस जाने देंगे। म्यूज के पास शराइत मानने के अलावा कोई चारा नहीं होता और फिलिप्स उन्हें लाइफ बोट के बारे में बताता है कि कैसे महफूज तरीके से बाहर निकलना है। लेकिन म्यूज के पास दूसरे मंसूबे होते हैं और वो फिलिप्स को अपने साथ ले लेता है, उसे अंदर धकेल देता है ताकि वो इस तरह से ज्यादा पैसे हासिल कर सके। फिलिप्स लाइफ बोट में सबके साथ बैठा कुछ खौफजदा होता है, जबकि म्यूज उसे कहता है कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है और पुरसुकून रहे। जैसे ही उन्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। हर कोई इस मौके पर एक दूसरे से झूठ बोल रहा होता है, कोई भी मुकम्मल तौर पर ईमानदार नहीं होता और सब चाले चल रहे होते हैं। फिर म्यूज लाइफ बोट के दरवाजे से देखता है। कार्गो जहाज को दोबारा चलता हुआ देखकर वो जान देता है कि फिलिप्स ने झूठ बोला जब लाइट्स बंद हो गई कि जहाज खराब हो गया है। फिलिप्स उन्हें समझाने की कोशिश करता है और म्यूज को बताता है कि वो उसके जख्म का इलाज करने में मदद करेगा, लेकिन म्यूज इनकार करता है। वो बिलाल को बैंडेज करने की इजाजत देता है, लेकिन नाजी मशकूक हो जाता है और उसे पीछे हटने और खामोश बैठने को कहता है। मेन कंट्रोल रूम में बहरिया को बताया जाता है कि उस सूरत हाल को पुरअमन तरीके से हल करें, वरना एक और जनरल सिक्योरिटी जिसे सील कहा जाता है उसका वर्जीनिया में एक अड्डा होता है, वो उसकी जगह ले लेगा और उसे संभाल लेगा, जो यकीनन खूनरेजी पर मुंतज होगा। फिलिप्स अपनी पूरी कोशिश करता है कि म्यूज को सूरत हाल में उन मसाइल से गुजरने के लिए कायल करे और अपनी फरार के लिए किसी किस्म की छोटी सी राह निकाले, लेकिन म्यूज उसे मुसलसल नजरअंदाज करता रहता है और मुकम्मल तौर पर उसके झांसे में नहीं आता। फिर बहरिया लाइफ बोट के करीब आती है और सूरत हाल को पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश करती है, लेकिन म्यूज ज्यादा पैसे चाहता है और वो फायरिंग कर देता है और उन्हें पीछे रहने को कहता है, वरना वो कप्तान को गोली मार देगा। उसके नतीजे में बहरिया के पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। लाइफ बोट अलबामा के समंदर के दरमियान में होती है, जिसे बहरिया अपने कंट्रोल स्क्रीन पर तलाश कर रही होती है। म्यूज डिवाइस के जरिए बहरिया से बात करता है और उन्हें बताता है कि अगर वो चाहते हैं कि कप्तान को बाहिफाजत वापस ले जाएं, तो उन्हें $10 मिलियन देने होंगे। फिलिप फिर सील की कमक देखता है और म्यूज से कहता है कि हथियार डाल दो, वरना वो सब मर जाएंगे और डूब जाएंगे। लेकिन म्यूज इनकार कर देता है और कहता है कि वो बहुत दूर आ चुका है और अब हार नहीं मानेगा। फिलिप जानता होता है कि ये सारी सूरत हाल किसी भी सूरत में पुरअमन तरीके से हल नहीं होगी और उसे जल्द ही भागने का कोई रास्ता निकालना होगा। फिलिप को एहसास होता है कि म्यूज इस कदर मायूस हो चुका है कि वो किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं। उसे इस बात का भी अंदाजा हो जाता है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो ये हालात और भी बिगड़ सकते हैं। फिलिप सोचता है कि उसे जल्द से जल्द बचने का कोई मंसूबा बनाना होगा, क्योंकि हालात हर गुजरते लम्हे के साथ मजीद खतरनाक होते जा रहे होते हैं। रात हो जाती है और फिलिप्स कश्ती के इर्द गिर्द की सूरत हाल का जायजा लेता है। वो देखता है कि नाजी सो रहा है। म्यूज से कहता है कि उसे थोड़ी देर के लिए बाहर जाने की जरूरत है। बिलाल पहरा दे रहा होता है। फिलिप्स बात करता है और फिर उसे पानी में फेंक देता है, खुद भी छलांग लगा देता है ताकि फरार हो सके। उससे लाइफ बोट में मौजूद सब घबरा जाते हैं क्योंकि नाजी जाग जाता है। म्यूज बाहर आता है और पानी में फायरिंग करता है। फिलिप्स फरार होने में नाकाम हो जाता है। म्यूज पानी में छलांग लगाकर फिलिप्स को पकड़ लेता है और उसे वापस अंदर ले आता है। नाजी गुस्से में आ जाता है और फिलिप्स को फरार होने की कोशिश पर मारने लगता है। वो उसे तकरीबन गला घोंटकर मार देता है, लेकिन म्यूज उसे रोक देता है और कहता है कि छोड़ दो। म्यूज फिलिप्स के सर पर बंदूक रखता है क्योंकि उसे महसूस होता है कि बहरिया तावन नहीं कर रही है और वो उसे गोली मारने ही वाला होता है जब डिवाइस से एक आवाज सुनाई देती है। ये सील का एक रुकन होता है जो कज़ाकों से तफ्तीश करने का जिम्मेदार होता है। सील का रुकन म्यूज को रोकने के लिए कायल करता है, उनके नाम लेता है और कहता है कि उनके बुजुर्ग आएंगे और खामोशी से सौदा कर लेंगे।
अराकीन लाइफ बोट के करीब आते हैं और म्यूज को अपने साथ अपने जहाज पर ले जाते हैं। म्यूज को एहसास होता है कि उसे दोबारा धोखा दिया गया है। ना कोई बुजुर्ग आने वाला है और ना ही कोई सौदा हो रहा है, ना ही वो फरार हो सकता है। फिर फिलिप्स एक सफा और कलम निकालता है और अपने खानदान के नाम लिखने लगता है, अपनी आंखों में आंसू रोकते हुए, ये जानते हुए कि वो शायद जिंदा ना बचे। नाजी उसे हरकत ना करने को कहता है और फिर सफा लेकर एक तरफ फेंक देता है। ये देखकर फिलिप्स उस पर झपटता है, लेकिन तीनों कज़ाक फिलिप्स पर हमला करके उसे बांध देते हैं और उसे मारने वाले ही होते हैं। नाजी बंदूक उठाकर फिलिप्स को गोली मारने वाला होता है, क्योंकि फिलिप्स बंधा हुआ होता है और वो मजाहमत नहीं कर सकता। जहाज पर मौजूद सील के अराकीन राइफल टीम को अहकामात देते हैं, दो सब्ज और एक सुर्ख हदफ की निशानदेही करते हुए। टीम पुरसुकून और सब्र से इंतजार करती है और जैसे ही हदफ सब्ज रंग में आता है, उन्हें गोली मारने का हुक्म दिया जाता है। लाइफ बोट में मौजूद तीनों कज़ाकों को गोली मार दी जाती है, जिससे फिलिप्स बाल बाल बच जाता है। फिलिप्स की आंखों पर बंदी पट्टी हटती है और वो देखता है कि सब मर चुके हैं। उनका खून उसके कपड़ों पर बिखरा हुआ होता है, जिससे फिलिप्स की सदमे, दहशत, उलझन और खौफ में चीख निकल जाती है। वो उन्हें बार बार हथियार डालने को कह रहा होता है, खास तौर पर बिलाल को, क्योंकि वो सिर्फ एक बच्चा होता है। आखिर में रेस्क्यू टीम आती है और फिलिप्स को अमूमी जहाज पर ले जाती है, जबकि म्यूज को बताया जाता है कि उसके दोस्त अब मर चुके हैं और कानून उसके साथ मुनासिब सलूक करेगा, क्योंकि उसे हथकड़ी लगा दी जाती है और वो जानता है कि वो हार गया है। फिर फिलिप्स को तिबी मुआयने के लिए मेडिकल रूम में ले जाया जाता है। वो अब भी इस सूरत हाल से सदमे में होता है और उसे बोलने या वाज़ेह जुमले बनाने में दुश्वारी होती है। वो कोशिश करता है, लेकिन उसका दिमाग उलझा हुआ होता है। वो रोता है और अपने खानदान के बारे में पूछता है। ये जाहिर करता है कि फिलिप्स भी एक आम इंसान था, जो एक खौफनाक सूरत-हाल का सामना करता है, जिसमें वो तकरीबन मर जाने वाला होता है। बाज़ औक़ात बातचीत और चीज़ों को पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश करना हमेशा काम नहीं करता। फिल्म का इख्तिताम फिलिप्स की रेस्क्यू होने, बाकी कज़ाकों के खात्मे और म्यूज की सजा के साथ होता है। तो कैसी लगी आपको मूवी की स्टोरी? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।